Hello students. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 18, Mr. Smith's Nose. So as the name suggests, it is a story about Mr. Smith's nose. So in this story, before starting this, do you know children that now we are able to change the body parts through the plastic surgeries? Obviously you know, and आपने plastic surgery काफ़ी times सुना भी होगा. सो व्हाट डज अ प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली, इसमें आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट को चेंज करवा सकते हो. सो इन दिस चैप्टर मिस्टर स्मिथ्स जो थे उनको अपने नोज से प्रॉब्लम थी, वो चाहते थे कि वो उसे चेंज करवाएं और उन्होंने चेंज करवाया. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट टू हिम. Do you like the way you look or would you prefer a different face? Cosmetic surgery has made this possible to some extent. Read this story in 22nd century where one may show up for new body parts. So let's start it. Well, Mr. Smith, if you prefer a different type of nose, we have a large selection available. I think this nose is a bit too small. Small noses are very fashionable this year, Mr. Smith. Very fashionable. Do you think it suits me? Asked Mr. Smith. I think it looks very nice, said the shop assistant. Okay, I will take it. So shop assistant Mr. Smith को कहता है कि क्या आप अपने डिफरेंट टाइप के नोज ट्राई करना चाहते हैं? हमारे पास बहुत सारी सिलेक्शन है, आप चूज कर सकते हैं. कि आप देखेंगे कि जो आपके पास अभी नोज है वो बहुत छोटा है. स्मॉल नोजेज आर फैशनेबल दिस ईयर, मिस्टर स्मिथ कहते हैं. तो डू यू थिंक इट सूट्स मी? मिस्टर स्मिथ ने पूछा कि क्या ये मुझे सूट करता है. तो वो कहता है कि इट लुक्स नाइस, शॉप असिस्टेंट ने कहा. तो वो कहता है कि मिस्टर स्मिथ कहते हैं ओके आई विल टेक इट. ऑन द एयर बस होम मिस्टर स्मिथ कॉल्ड हिज वाइफ ऑन हिज रिस्ट फोन. उन्होंने एज यू नो अब डिजिटल फ़ोन रिस्ट फोन्स भी आते हैं, तो उन्होंने उस फ़ोन से अपनी वाइफ को कॉल किया. हेलो डियर, डू यू लाइक माई न्यू नोज? Mrs. Smith looked at her husband's new nose on the videophone monitor on the wall in the kitchen. I think it's a bit too small, she said. Small noses are very fashionable this year, replied Mr. Smith. Very fashionable. It's all easy so now, thought Mr. Smith. 100 years ago, it was impossible to change your body, or almost impossible. There was the old-fashioned plastic surgery, but it was expensive, painful, and dangerous. Ugh. Now, thanks to our 22nd century genetic engineering, we can change our body when we want. So, अभी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्लास्टिक सर्जरीज हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिकॉज ये 22nd सेंचुरी के लिए चैप्टर लिखा गया है कि तब तक टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर जाएगी कि तब जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी. दैट मीन्स हम अपने बॉडी पार्ट को कम पैसों में कभी भी चेंज करवा सकते हैं. तो मिस्टर स्मिथ की वाइफ कहती हैं उस नोज़ को देखकर कि ये नोज़ काफ़ी छोटा है. तो मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि ये काफ़ी फैशनेबल है आजकल स्मॉल नोजेस रखना. ही लुक्ड एट हिज स्मॉल नोज इन द मिरर एंड थॉट about how fashionable he was. He was very happy with it, and the only problem now, he thought, was that he needed some hair to go with it. तो लेकिन अब उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वो उस स्मॉल नोज के साथ तो हैप्पी थे, लेकिन वो कुछ हेयर्स भी ग्रो करना चाहते थे. He looked on the internet for some new hair, but the internet was so slow. Eventually, he decided to go to the Bodyco in person. Good morning, Mr. Smith, said the Bodyco shop assistant. How can I help you today? Mr. Smith remembered the robot assistant in the Bodyco shop a few years ago. The robot was friendlier and more efficient, but too many robots created too much unemployment, and robots was replaced by a ह्यूमन. तो मिस्टर स्मिथ ने डिसाइड किया कि वो न्यू हेयर्स भी लगवाएंगे. इसके लिए उन्होंने इंटरनेट पर ट्राई किया, लेकिन उन्हें वहाँ पर जब नहीं मिला तो वो बॉडीको को बाय पर्सन मिलने चले गए. वो बॉडीको के पास गए और वहाँ पर एक शॉप असिस्टेंट जो कि एक रोबोट था वो उन्हें वहाँ पर मिला. तो उन्होंने कहा कि जो रोबोट्स हैं उन्होंने काफ़ी सारे ह्यूमन बींग्स को अनएम्प्लॉयड किया है, कि उनकी जो वर्क्स थे अब रोबोट करते हैं, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास काम करने के लिए कोई काम ही नहीं रहा. आई वुड लाइक सम न्यू हेयर प्लीज. सर्टेनली मिस्टर स्मिथ. व्हाट टाइप ऑफ हेयर वुड यू लाइक? शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर गोज वेल विद अ स्मॉल नोज. हाउ अबाउट शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर? तो वो उस पर जो वो शॉप असिस्टेंट रोबोट होता है
वो मिस्टर स्मिथ को कहता है कि क्या आप शॉर्ट ब्लोंड हेयर लेंगे, क्योंकि वो आपके शॉर्ट नोज के साथ सूट करेंगे। मिस्टर स्मिथ लुक्ड एट हिज हेयर, इट वॉज ओल्ड एंड ग्रे। येस, ही थॉट शॉर्ट एंड ब्लोंड। When he was young, he had short blonde hair. He wanted to look young again. Yes, I will have short blonde hair, please. Could it be a bit curly as well? Curly? Asked the shop assistant. Yes, you know, curly, not straight. Yes, Mr. Smith, I know what curly means, but curly hair isn't very fashionable this year. तो वो सोचते हैं, मिस्टर स्मिथ सोचते हैं कि जब वो यंग थे तो जब उनके हेयर थे वो ब्लॉन्ड और शॉर्ट थे, तो वो कहते हैं कि अब मैं फिर से अगर ऐसे हेयर्स लूँगा तो मैं फिर से यंग दिखने लगूँगा। तो वो कहते हैं, शॉप असिस्टेंट को कहते हैं कि मुझे थोड़े से कर्ली हेयर्स भी चाहिए। तो शॉप असिस्टेंट कहता है कि कर्ली हेयर्स आर नॉट फैशनेबल दिस ईयर। इजंट इट? नो, इजंट इट, बट आई लाइक कर्ली हेयर। वेरी वेल मिस्टर स्मिथ, शॉर्ट ब्लॉन्ड कर्ली हेयर। वुड यू लाइक समथिंग एल्स? वी हैव अ स्पेशल ऑफर ऑन ईयर्स दिस ईयर। तो वो उन्हें कहते हैं कि हमारे पास ईयर्स पर भी ऑफर है। यस मिस्टर स्मिथ, थिंग्स यू हियर विद। तो वो कहते हैं कि सही आपने सुना कि हमारे पास ईयर्स के लिए भी ऑफर है। आई नो वट ईयर्स आर। वट टाइप ऑफ ईयर्स आर ऑन ऑफर? मिस्टर स्मिथ वेंट आउट ऑफ द शॉप विद अ न्यू शॉर्ट ब्लॉन्ड कर्ली हेयर एंड 2 न्यू ईयर्स। तो वो उसे कहते हैं कि ईयर्स के लिए भी ऑफर है, तो फिर वो वहाँ से ईयर्स चूज़ करते हैं, अपने हेयर्स चूज़ करते हैं और वो लेकर वहाँ से चले जाते हैं। After this, his interest in his new body started to grow. In the next few weeks, he bought new eyes, green unuseful but fashionable, new hands, new arms, new knees, new feet. Mr. Smith was happy because Mr. Smith's new feet did not smell as bad as his old feet. His body was now completely different. Am I same man I was a few weeks ago? Thought Mr. Smith. I have a new nose, hair, eyes, hands, arms, knees and feet, but I have the same brain. So I think I am the same man. He thought he was the same man, but he was not sure. तो उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर स्मिथ को अपनी बॉडी में इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपनी पूरी बॉडी चेंज करवा चुके होते हैं। सो मिसेस स्मिथ काफ़ी हैप्पी होती हैं, क्योंकि अब उनके जो न्यू फीट होते हैं वैसी स्मेल नहीं करते जैसा कि ओल्ड फीट करते हैं। सो मिस्टर स्मिथ सोचते हैं एक दिन कि क्या वो सेम पर्सन है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी बॉडी तो चेंज करवा ली लेकिन जो उनका ब्रेन था वो पुराना था। One morning he woke up and his new nose did not work. What's the matter, dear? asked Mrs. Smith. My new nose does not work. It is blocked. Maybe you have got a cold, suggested Mrs. Smith. That's impossible. This is a genetically engineered body nose. It does not get cold. But it was true. The new nose did not work. It was blocked and Mr. Smith could not smell anything. तो एक दिन क्या होता है, जब मिस्टर स्मिथ उठते हैं तो वो उनका जो न्यू नोज़ होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मेरा जो न्यू नोज़ है वो ख़राब हो गया है और ये पॉसिबल नहीं है कि इस नोज़ को कोल्ड हो सके, क्योंकि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और इससे कोल्ड नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही होती। ही वेंट बैक टू द बॉडीको शॉप. गुड मॉर्निंग मिस्टर स्मिथ, said the assistant. What would you like today? I want a new nose, said Mr. Smith. You already want a new nose, said the surprised shop assistant, but you have only had this one for a month. Don't worry, small noses are still fashionable. तो वो उन्हें कहते हैं, शॉप असिस्टेंट कहता है कि आपने तो रिसेंटली ही एक न्यू नोज़ लिया था और अब आप फिर से लेने आए हैं। तो मिस्टर स्मिथ को वो कहता है कि डोंट वरी, स्टिल जो छोटे नोज़ हैं वो आज भी फैशनेबल हैं। नो यू डोंट अंडरस्टैंड, सैड मिस्टर स्मिथ. आई वॉन्ट अ न्यू नोज़ बिकॉज दिस वन डज नॉट वर्क. तो मिस्टर स्मिथ उसे कहते हैं कि मुझे एक नया नोज़ चाहिए क्योंकि मेरा पहले वाला नोज़ काम नहीं कर रहा है. दैट्स इम्पॉसिबल, सैड द शॉप असिस्टेंट. यू हैव ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड बॉडी को नोज़, इट कांट गो रोंग. तो वो कहते हैं कि आपके पास एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड नोज़ है जो कि गलत काम नहीं कर सकता है. इट हैज़ गोन रोंग, रिप्लाइड मिस्टर स्मिथ. इट्स ब्लॉक्ड एंड आई कांट स्मेल एनीथिंग. वट हैव यू यूज्ड योर नोज़ टू डू मिस्टर स्मिथ, आस्क्ड द शॉप असिस्टेंट.
What have I done with my nose? That's a stupid question. I have not done anything unusual with my nose. I have used to breathe to smell as usual. तो वो कहते हैं कि शॉप असिस्टेंट उन्हें पूछता है कि आपने आपके नोज से क्या किया है। तो मिस्टर स्मिथ कहते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ इसे स्मेल करने के लिए यूज़ करता हूँ, कुछ भी अनयूजुअल नहीं किया है। इफ़ यू हैव नॉट यूज्ड योर नोज करेक्टली मिस्टर स्मिथ, it is possible that it will not work correctly. That's absurd, shouted Mr. Smith. I want my money back. I want a refund. तो वो उसे कहते हैं कि तुम एक सेंसलेस बात बोल रहे हो, मैं अपने नोज का सही यूज़ क्यों नहीं करूँगा, तुम एक सही बात नहीं बोल रहे हो, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। I am afraid that we do not give refunds, Mr. Smith. That was no guarantee with this nose. Mr. Smith was so angry that he did not know what to say. He walked out of the shop and did not say anything. तो मिस्टर स्मिथ ने कहा कि मुझे रिफंड चाहिए, तो शॉप असिस्टेंट ने कहा कि हम लोग रिफंड नहीं देते हैं। तो मिस्टर स्मिथ वहाँ से एंग्री होकर चले जाते हैं। बट नाउ ही हैड अ बिग प्रॉब्लम, ए यूजलेस नोज, fashionable, yes, useful, no. Unfortunately, his problem started to grow. The next morning, he woke up and found he could not hear anything, and his new blonde hair went grey. तो वो कहते हैं फिर नेक्स्ट मॉर्निंग और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जो उनके ईयर होते हैं उससे उन्हें सुनाई नहीं दे रहा होता, और जो उनके हेयर्स होते हैं वो ग्रे होने स्टार्ट हो जाते हैं। देन हिज न्यू नीज डिड नॉट मूव एज ही कुड नॉट सी अ थिंग विद हिज अनयूजफुल ग्रीन हाई। तो जो भी उन्होंने अपने जो नए बॉडी पार्ट्स लगवाए होते हैं वो सब वर्क करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। इवेंचुअली मिसेस स्मिथ पुट हिम इन देयर एयर कार एंड फ्लू टू द बॉडी को शॉप। शी कैरिड हर हस्बैंड इन टू द शॉप एंड बिकॉज नाउ ही कुड नॉट वॉक। तो वो उसे एक जो असिस्टेंट होता है उन्हें एक वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करवाती हैं, क्योंकि उसके हस्बैंड मूव नहीं कर सकते अब। गुड मॉर्निंग मिसेस स्मिथ, असिस्टेंट ने कहा। What can I do for you today? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? Mr. Smith would not like anything new at all today. Thank you, replied Mrs. Smith. तो मिसेस स्मिथ कहती हैं कि मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मुझे मेरे हस्बैंड की पुरानी बॉडी वापस चाहिए, पुराने जो बॉडी पार्ट्स थे वो वापस चाहिए। देन जो शॉप असिस्टेंट होता है वो मिसेस स्मिथ को कहता है कि हम आपको रिफंड नहीं कर सकते, और आपके उन जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हमने चेंज किया हम उन्हें रिसाइकल कर देते हैं। तो व्हाट कैन वी डू कि हम अब जो नए बॉडी पार्ट्स हैं उनको ओल्ड बॉडी पार्ट से मॉडिफाइड कर सकें। तो मिसेस स्मिथ कहती हैं कैन आई हैव अ लुक एट वन। सर्टेनली द शॉप असिस्टेंट स्पोक टू हिज कंप्यूटर एंड रिकंडीशनड बॉडी पार्ट, और एक न्यू बॉडी पार्ट दिखाता है। इट वॉज अ फैमिलियर बॉडी पार्ट। मिसेस स्मिथ ने देखा कि वो उसके हस्बैंड का ही बॉडी पार्ट है। बट दैट्स माई हस्बैंड, शाउटेड मिसेस स्मिथ। That's original, Mr. Smith. Yes, that's right, said the shop assistant. We reconditioned Mr. Smith's old body. Can we have his old body back, please? Certainly, Mr. Smith. Mrs. Smith, कि आप ले सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1 लाख यूरोज, यूरोस मीन्स जैसे इंडिया में रुपीज़ होते हैं वैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरोज होते हैं, तो आपको वो देने पड़ेंगे। तो मिसेस स्मिथ कहती हैं 1 लाख यूरोज, चिल्लाकर बोलती हैं दैट्स वेरी एक्सपेंसिव इजंट इट। Mr. Smith has been reconditioned. Mr. Smith got his new body back and Mr. Smith flew him back home in the air car. तो उन्हें वो नई बॉडी मिल जाती है और फिर वो उसे वापस घर में ले जाती हैं। तो मिस्टर स्मिथ कहते हैं आई एम माई सेल्फ अगेन, अब मैं फाइनली पहले जैसा हो गया हूँ। नॉट एग्जैक्टली, सैड मिस्टर स्मिथ, लेकिन आपको रिकंडीशनड किया गया है। व्हाट डज रिकंडीशनड मीन्स? तो मिस्टर स्मिथ पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। वेल सैड मिसेस स्मिथ, आई थिंक इट मीन्स दैट यू हैव अ न्यू ब्रेन, अब आपको एक न्यू ब्रेन दिया गया है। आई थिंक दैट विल बी यूजफुल मिस्टर स्मिथ, आई थिंक सो टू डियर। तो वो कहती हैं कि हाँ मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ कि अब आपका जो ये न्यू ब्रेन है वो अच्छा रहेगा, वो यूजफुल रहेगा, क्योंकि उनकी बॉडी को रिकंडीशन किया गया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर दैट नेम्ड मिस्टर स्मिथ्स नोज। आई होप you have found it interesting to read.